Dear student, all of you will be well today. Now I am going to tell you about the poem Keeping Quiet, written by Pablo Neruda. About the poet Pablo Neruda, pen name of Naphtali Ricardo Reyes Basalto, who was born in the town of Ferrol in Chile. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection and creating a feeling of mutual understanding among human beings. So, dear student, here the Pablo Neruda insist on observing ourselves and harmonizing with nature, that we should be partnered with the earth. We should stay, because whatever we learn and what we accumulate in life, so we should introspect, come, and should not harm nature. Here the poet suggests all the human beings living on surface on the earth to keep still, to keep silent, and to suspend our all activities till he count to 12. It will be a rare and exotic moment, for we all feel together oneness in a sudden surprise. Words to remember: keep still, be silent. The face, the surface, it means सतह. Exotic, very rare, असामान्य. Rush, hurry, जल्दबाजी. Strangeness, it means surprise, आश्चर्य. Harm, यानी कि इंडिजिगल, नुकसान पहुंचाना. Hurt, इंजर्ड, घायल होना. Gathering, to collect, जमा होना. Survivors, remaining alive, युद्ध के बाद बचे लड़ाकू. Interrupt, halt या रुकावट. इन एक्टिविटी, डूइंग नथिंग. और जो है निठल्लापन. ट्रक, डीलिंग, एसोसिएट्स, यानी कि जुड़ना. नाउ लेट मी नाउ रीड द पोएम एंड डिस्क्राइब it in detail. Now we will count to 12, and we will all keep still for once on the face of the earth. Let not speak in any language. Let not speak in any language. Let stop for 1 second and not move our arms so much. It would be an exotic moment. Without rush, without engines, we would be all together in a sudden strangeness. यहीं तक जो है हम अभी अर्थ देखेंगे इसका. Here the poet suggests us all the human beings living on the surface on the earth to keep still, to keep silent. Now we will count to 12. अब हम क्या करेंगे, 12 तक की गिनती गिनेंगे और हम सब क्या होंगे, शांत रहेंगे. Now we will count to 12 and we will all keep still. अब हम सब 12 तक गिनती गिनेंगे और सब क्या रहेंगे, शांत रहेंगे. यानी कि काउंट करना, इट मीन्स रिसाइट नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर्स. और कीप स्टिल, इट मीन्स बी साइलेंट, शांत रहना. समझ गए होंगे शायद. फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज. द फेस, इट मीन्स द सरफेस, सतह. नॉट मूव आवर आर्म्स, इट मीन्स सीज आवर एक्टिविटी. हम अपने क्रियाकलाप क्या कर दें, बंद कर दें. यानी कि कवि कह रहा है कि पृथ्वी के सतह पर एक क्षण के लिए किसी भी भाषा में हम बोलना बंद कर दें. आओ एक सेकंड के लिए रुक जाएं और अपने क्रियाकलापों को बिल्कुल बंद कर दें, सीज कर दें. सीज आवर ऑल एक्टिविटी टिल वी काउंट टू 12. It would be an exotic moment. It would be an exotic moment without rush, without engines. We would
all be together in a sudden strangeness. Exotic movement, it mean एकदम असामान्य क्षण, अनयूजुअल मूवमेंट. रस, रस तो जानते हैं दौड़ना या दौड़ भाग जो भी होती एक्टिविटी. और जो है स्ट्रेंजनेस यानी कि सरप्राइज यानी कि आश्चर्य. देखिए सुनिए, यह एकदम असामान्य क्षण होगा कि जो है हम क्या कर दें, बिना भाग दौड़ के, बिना किसी वाहन के हम तेज़ी से अचानक आश्चर्य के साथ एक जगह एकत्र हो जाएंगे. इट वुड बी एन एक्जोटिक मूवमेंट, है ना, असामान्य क्षण होगा एकदम से, और बिना भाग दौड़ के, बिना किसी वाहन के हम तेज़ी के साथ, आश्चर्य के साथ एक जगह जो है इकट्ठे हो जाएंगे. यानी कि नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल बी साइलेंट फॉर अ मोमेंट ऑन एनी सरफेस ऑफ द अर्थ. स्टॉप स्पीकिंग इन एनी लैंग्वेज, स्टॉप फॉर अ सेकेंड and stop our activities or cease our activities. It will be a very rare moment, it will be a very exotic moment, and without any arms we quickly gathered in a place with sudden surprise. यानी कि क्या होगा, हम सब जो है बड़े आश्चर्य के साथ एक जगह क्या हो जाएंगे, एकत्र हो जाएंगे. नेक्स्ट देखिए, द फिशरमैन इन द कोल्ड सी. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म व्हील्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड. जो लोग क्या कर रहे हैं, यानी कि दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वार्स. यहाँ तक देखिए पहले फिशरमैन से और हर्ट हैंड तक. फिशरमैन इन कोल्ड सी, फिशरमैन इन कोल्ड सी यानी कि कवि चाहता है कि मछुआरे ध्रुवीय या ठंडे सागरों में व्हेल मछली न मारें. जो है आदमी नमक इकट्ठा कर रहा है वह अपने घायल हाथों का क्या रखे, ध्यान रखे. हियर द पोइट वांट the fishermen not to kill the whales in the polar cold seas, and the men who are collecting salt take care of their injured hand. नेक्स्ट आगे देखिए, those who prepare green wars, war with gas, war with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. What I want should not be confused with total inactivity. Now those who prepare green wars, यानी कि वे लोग जो प्रकृति के विरुद्ध जो है युद्ध करने की क्या करते हैं, तैयारी करते हैं. ग्रीन वार यानी कि प्रिपेयर करना, मेक रेडी फॉर यूज़. ग्रीन वार्स इट मीन्स प्रकृति को नष्ट करना, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचर. जो लोग जो है प्रकृति के विरुद्ध जो है इन युद्धों को करते हैं. कैसे, वार विद गैस, कौन से जो है साधन उनके पास रहते हैं, वार विद गैस, वार विद फायर, आग, रासायनिक बम और आग्नेय अस्त्र युद्ध में जो है ये लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं. तो जो है कवि कह रहा है, विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स. युद्ध के बाद कोई व्यक्ति जीवित नहीं रहता और जो है ऐसी विजय क्या है, अर्थहीन है. विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कोई महत्वहीन है ऐसी विजय. वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स एंड वॉक अबाउट देयर ब्रदर्स. ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि जो है ऐसी विजय जब अर्थहीन हो जाती है तो ऐसे लोगों को अपने स्वच्छ वस्त्र पहनकर अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ना चाहिए. और क्या करना चाहिए, इन द शेड डूइंग नथिंग, और पेड़ों की छाया में बैठकर शांतिपूर्वक आराम करना चाहिए. ऐसे लोगों के लिए कवि जो है इस प्रकार की सलाह देता है. इट मीन्स people
who prepare to fight against nature, chemical bombs and firearms are used. No person survived after the war. Such a play is meaningless. Such a war is meaningless. Such people should wear their clean clothes and go out for a walk with their brothers and sit peacefully in the shade of trees and relax. ऐसे लोगों को जो है क्या करना चाहिए, अपने भाइयों के साथ घूमने के लिए निकल जाना चाहिए, निकल पड़ना चाहिए और पेड़ों की छाया में बैठकर शांतिपूर्वक बैठकर के आराम करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेंजा में पोएट ने क्या कहा, इन द shade doing nothing, what I want should not be confused total inactivities। कवि ने कहा कि जो है कंफ्यूज्ड मत होना, यानी कि मेरा अर्थ जो है इन एक्टिविटी से ये नहीं है कि आप कुछ कार्य न करें, आप जो है निठल्लेपन हो जाएं, डूइंग नथिंग एट ऑल, आप कुछ कार्य न करें। मेरा जो तात्पर्य है उसका अर्थ बिल्कुल भी निठल्लेपन से न लगाया जाए, क्योंकि यह गलत होगा। क्योंकि जो है कवि ने कहा कि जो है मैं क्या चाहता हूँ, कवि चाहता है कि जो है हम कुछ अच्छे कार्य करें, हम जो है निठल्लेपन से जो है अब न बैठें। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, इफ़ वी वीआर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, perhaps a huge silence might interrupt sadness of never understanding ourselves and threatening ourselves with death। कवि ने कहा कि जो है मेरा बिल्कुल भी जो है क्या नहीं है, इन एक्टिविटी से जो है मेरा जो है मतलब नहीं है कि हम इनएक्टिव रहें। शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड टोटल इनएक्टिविटी, तो यानी कि पूर्ण निष्क्रियता से मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ। कवि ने कहा मैं मृत्यु से संबद्ध नहीं होना चाहता हूँ, यानी कि लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, इट मीन्स लाइफ मीन्स एक्टिविटी। जीवन का अर्थ क्या है, सक्रियता है, और इन एक्टिविटी इट मीन्स इनडायरेक्ट इंडिकेशन टू डेथ। एंड पोइट ने क्या कहा, आई वांट नो ट्रक विद डेथ, यानी कि आई रिफ्यूज़ टू एसोसिएट विद डेथ। मैं मृत्यु से जो है जुड़ना नहीं चाहता हूँ, मृत्यु से संबद्ध नहीं होना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मैं निष्क्रिय होकर और जो है मृत्यु का वर्ण करूँ, ऐसा मैं नहीं चाहता। मेरा इससे अर्थ न लगाया जाए इस बात से। और जो है आई वांट नो ट्रक विद डेथ इफ़ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग। तो जो है कवि ने कहा कि जो है वी वर नॉट ऑल्सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग लाइफ्स मूविंग। हमें जो है केवल एक सिंगल सोच जीवन में नहीं रखनी चाहिए, अपने जीवन को जो है लगातार लाइफ को जो है जीवन में आगे बढ़ने का नाम है जीवन। मूविंग में जो है जीवन जो है मूविंग में रहना चाहिए। और इस प्रकार से कहने का आशय दूसरा अर्थ ये है, हम आपको अपने आप को यदि कभी न समझ पाएँ और अपने आप को जो है मृत्यु से जो है हम डराएं, तो जो है इससे क्या होगा, एक प्रकार की उदासी उत्पन्न होगी। लाइफ इज़ व्हाट इज़ अबाउट, आई वांट नो ट्रक विद डेथ इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइफ्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग। अगर जो है हम मृत्यु से जो है भयभीत हो जाएंगे और कुछ कार्य नहीं करेंगे, कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट आवर सैडनेस। और शायद जो है चुप्पी है, विशाल चुप्पी है, हमारी जो उदासी है वह जो है उसको तोड़ने में यह चीज़ें जो है सहायक हों। कौन सी चीज़ें, हम जो है लाइफ को जो है मूविंग में रखें, अपने जीवन को जो है आगे बढ़ाते जाएं। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्फ और थ्रेटनिंग आवर सेल्फ विद डेथ। और अपने आप को जो है क्या न कराएं, थ्रेटनिंग न कराएं, भयभीत न कराएं। किससे, मृत्यु से। कभी जो है अपने आप को भयभीत न कराएं।
of threatening ourselves with that. Perhaps earth can teach us, तो जो है perhaps the earth can teach us, कवि ने जो है कहा शायद पृथ्वी पर जो है जाने वाली चीज़ों से हमें नसीहत मिल सकती है। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead, जब जो है प्रत्येक चीज़ मृत प्रतीत होती है तो कुछ समय बाद वह क्या हो जाती है, पुनः जीवित हो जाता है। लेटर प्रूव्स टू बी अलिव, वह चीज़ जो है पुनः कुछ समय बाद जीवित प्रतीत होती है। शायद पृथ्वी पर जो है पृथ्वी हमें नसीहत दे सकती है कि जब प्रत्येक चीज़ जो है मृत तुल्य हो जाती है और कुछ समय बाद जो है वह क्या हो जाती है, जीवित हो जाती है। तो कवि ने कहा नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, अब मैं 12 तक की जो है गिनती गिनता हूँ और आप जो है शांत रहें और मैं चला जाता हूँ। एंड और मैं क्या करता हूँ, चला जाता हूँ। तो यहाँ पर जो है पोएम जो है समाप्त होती है। इस प्रकार से जो है कवि ने जो है यहाँ पर जो है एक संदेश दिया कि जो है द अर्थ can teach us that everything seems dead in just like a winter season, but as the spring comes, everything becomes alive. The period of winter gives rest and leisure to the earth. Hence, we all need rest and leisure for once to introspect quality. तो जो है ये हम जो है क्या करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, अब हम सब जो है 12 तक की गिनती गिनेंगे और सब हम क्या हो जाएंगे, चुप हो जाएंगे। इस समय क्या करेंगे, रिसाइट ए नंबर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर्स एंड काउंट टू 12, वी विल ऑल कीप स्टिल, इट मीन्स वी डेवलप आवर इंट्रोस्पेक्ट क्वालिटी। इस समय जो है हम क्या करें, अपना आत्मनिरीक्षण करें, अपनी जो है आत्मनिरीक्षण करके जीवन में जो है आगे बढ़ें। यही जो है संदेश जो है पृथ्वी हमें देती है। परहैप्स वी कैन गेट एट द अर्थ कैन एडवाइस फ्रॉम एवरीथिंग फाउंड ऑन अर्थ दैट व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स अलिव अगेन। नाउ आई विल काउंट टू 12 एंड वी विल कीप स्टिल, और you come and I leave, you stay and I leave. Here the intention of keeping quiet, the poem silent, is that the observing ourselves till we count to 12. ये कहने का आशय कवि का ये है कि हम जो है 12 तक की गिनती गिनेंगे और जो है तब तक चुप रहेंगे। चुप रहने का आशय निष्क्रियता से नहीं है, चुप रहने का आशय ये है कि हम कुछ देर तक अपना आत्मनिरीक्षण करें, इंट्रोस्पेक्ट क्वालिटी को डेवलप करें और जो है अपने जीवन में जो है आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ कि जो है आप लोगों को जो है ये पोएम जो है समझ में आ गई होगी। इसके सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखे हैं और आप लोग जो हैं इसके इन क्वेश्चन आंसर को भी करेंगे। What will counting up to 12 and keeping still help us achieve? Do you think the poet advocates total inactivity and death? Important question. तो सारे क्वेश्चंस आप लोग करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने जो है ध्यान से पोएम को सुना होगा। ओके बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।